These are part 5 of the lectures. So, protection of life and personal liberty. Article 21 declares that no person shall be deprived of his or her life or personal liberty except according to procedure established by the law. So, this is written in the Article 21. This right is available both to citizen and नॉन citizens. ठीक है. सो कहीं ना कहीं ये काफ़ी एक्सपेंडेड है और 2023 के जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ आर्टिकल 21 गॉट एक्सपेंडेड. ठीक है. फेमस गोपाला 1950. सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. It held that protection under Article 21 is available only against arbitrary executive action and not from arbitrary legislative actions. ठीक है. This means that state can deprive the right of life and personal liberty of a person based on a law. This is because of the expression procedure established by the law in Article 21, which is different from the American expression due process of law. Hence, validity of the law that has prescribed a procedure cannot be questioned on the ground that law is unreasonable, unfair, and unjust. Secondly, the Supreme Court held that personal liberty means the only liberty relating to the person or a body of individual. But Maneka Gandhi case 1970, Supreme Court overruled its judgment in Gopalan case by taking a wider interpretation of Article 21. Therefore, it ruled that right to life, personal liberty can be deprived by law provided the procedure prescribed by the law is reasonable, fair, just, and not arbitrary, fanciful, or oppressive. In order that procedure is reasonably fair, just procedure should be conformed to the principle of natural justice. In the other word, it introduced the American expression due process of the law. तो जो principle of natural justice is enshrined in due process of law. ठीक है. तो in effect जो क्या है, the protection under Article 21 should be available not only against arbitrary executive action but also against legislative actions. Further, the court held that right to life as embodied in Article 21 is not merely confined to animal existence survival, but it includes within its ambit right to live with human dignity and all those aspects of life which goes to make a man life meaningful, complete, worth living. It's ruled that expression personal liberty in Article 21 of the widest amplitude. It covered the variety of the rights that go to constitute the personal liberties of the man. तो इस आर्टिकल का पहले स्कोप जो गोपालन केस था उससे काफ़ी कम था. फिर बाद में इसको ओवरटर्न करके मनेका गांधी केस में बोला गया कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को भी अब जुडिशल स्क्रूटनी में डाला जाएगा अगर लॉ जस्टिफाइड है या लॉ रीजनेबल है कि नहीं है. देन जो पर्सनल लिबर्टी उसको वाइड एक्सप्रेशन मिला. तो इन मनेका गांधी केस के बाद में इट है डिक्लेयर दी फॉलोइंग राइट एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. ठीक है. राइट टू लिव विद ह्यूमैनिटी, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूसिव पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर, राइट टू लाइवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, फ्री लीगल एड, solitary confinement, speedy trial against handicap, inhuman treatment, right against delayed execution, right to travel abroad, right to travel in territories given in 19 Indian territories and abroad is in 21. Bonded labor, custodial harassment के against, then timely medical treatment driven out of fair trial है ना, right to road इन हिली एरिया RTI भी इसके अंदर है, राइट टू रेप्यूटेशन भी है, फैमिली पेंशन है, अपील फ्रॉम जजमेंट ऑफ कन्विक्शन है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस राइट है, अगेंस्ट बार फैटर्स है, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू स्लीप भी इसी के अंडर में है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी, डिसेंट बरियल एंड क्रीमेशन. तो मतलब लाइफ मरने तक के सारे राइट इसी के अंदर दिए हुए हैं. राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ इट्स चॉइस, राइट टू डाई विद डिग्निटी, पैसिव यूथनीजिया भी है. द इम्पॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 आर मैंशनड इन लास्ट में टेबल में, बिकॉज ये लेटेस्ट एडिशन है. तो इसमें 2023 को मेंस का पेपर आने के बाद से ये सब चीज़ें ज़्यादा ऐड की गई हैं. लाइक लेटेस्ट जो केस लॉज हैं वो भी इस बुक में ऐड कर दिए गए हैं, विच इज़ वेरी गुड. ना राइट टू एजुकेशन 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से इसको जोड़ा गया था. ठीक है. एजुकेशन टू ऑल, या फिर हम मेंस में अगर यूज़ करेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन
है ना। जीरो हंगर सबसे पहले पता है हमें कि 1 में है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, है ना, SDG 2 में। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 45 पार्ट 4 में जोड़ा गया था। फिर उन्नी कृष्ण केस 1993 itself सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन एंड राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इट हेल्ड दैट एवरी चिल्ड्रन हैज राइट टू फ्री एजुकेशन। तो उन्नीकरण केस में ये बोला गया था। तो देखो ये क्या क्या जोड़ा गया था किस किस केस से, है ना। सतवंत सिंह साइनी से राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, MH हॉस्कॉट से राइट टू फ्री लीगल एड, हुसिनारा खातून से राइट टू स्पीडी ट्रायल, फ्रांसिस कॉर्ले मोलिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन से राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, शीला बरसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र के राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, ओल्गा टेलीस केस राइट टू लाइवलीहुड, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया राइट टू इमरजेंसी, शांतिसार बिल्डर्स राइट टू शेल्टर, KS पुट्टास्वामी राइट टू प्राइवेसी, कॉमन कॉज केस के बाद राइट टू लाइफ पैसिव यूथनेसिया भी इसके अंडर में जोड़ा गया था। ठीक है। फिर मोहिनी जैन केस 1992 wherein it's partly declared that there is a fundamental right to education up to any level of including professional education like medicine and engineering। फिर 21 RT आया 2009 में। ठीक है। राइट टू एजुकेशन इसके परसुएंस में आया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में ये जो 2009 में आया RT उसको फिर 1 अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंट करा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है। पनिटिव डिटेंशन द पनिश अ पर्सन फॉर अ ऑफेंस कमिटेड बाय हिम हर अंडर आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट। ठीक है। प्यूनिटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन है ही मे कमिट अ क्राइम टू प्रिवेंट हिम, इट इज प्रिकॉशनरी मेजर। Two part, first part deal with the cases of ordinary law and the second part deal with the case of preventive detention। First part, right to inform on the ground of arrest, consult and defended by legal practitioner for first part के लिए। Right to be produced before the magistrate 24 hour and right to be released after 24 hour unless a magistrate authorizes further detention। ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी लॉ के केस में है। बट हम देखते हैं दिस सेफगार्ड नॉट अवेलेबल फॉर enemy alien a person arrested detained under preventive detention। ठीक है। In the first part, Article 22 does not cover the arrest under the order of the court, civil arrest, failure to pay income tax, deportation of alien। They may apply only to an act criminal or quasi criminal nature or some activity। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसमें से कुछ कंडीशन है जिनमें आर्टिकल 22 में कवर नहीं होती हैं। ठीक है, जो दी हुई हैं सिविल अरेस्ट एंड जो डिपोर्टेशन वाली। सेकेंड पार्ट ऑफ द person detained under preventive detention, this protection is available both to citizen as well as aliens including the following। ठीक है। the detention of a person cannot exceed 3 months unless an advisory board report, ठीक है, consist of judges of high court। तो आपको याद रखना है the ground of detention should be communicated to detenue। ठीक है। fact considering again the public interest not to be disclosed, should be afforded opportunity to make representation against detention order। तो ये सब चीज़ें दी जानी चाहिए। आर्टिकल 22 also authorizes parliament to prescribe circumstances and the classes of the cases in which a person can be detained for more than 3 months under a preventive detention law without obtaining the opinion of advisory board। maximum period which person can be detained in any class of cases under preventive detention of the law, procedure to be followed by the advisory board inquiry। 44th Amendment Act of 1978 reduced the period of detention without obtaining the opinion of the advisory board from 3 months to 2 months। दिस प्रोविजन नॉट बीन येट इन फोर्स। तो 3 मंथ के लिए अभी भी मतलब रगड़ा जाता है लोगों को। ठीक है। प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट आर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ 1950 एक्सपायर 1969। ये काफ़ी खाते। फिर नासा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA जिसको बोलते हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। कोफपोसा टेररिस्ट डिस्ट्रप्शन एक्टिविटी। टाडा 1985 रिपील हो चुका है। पोटा आया था 2002 में इसके प्रिवेंशन के लिए। ठीक है। और UAPA आया था अमेंडेड इन इतने साल में। तो UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी, पोटा को भी रिपील कर दिया गया था। ठीक है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू नो दैट नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन वर्ल्ड हैज़ मेड
प्रिवेंटेड डिटेंशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज एंड डन, तो ये यूनिक फीचर है ना। इट इज़ अननोन इन यूएसए, इट वॉज रिजॉर्टेड इन ब्रिटेन ओनली ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडियन प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जिस्ट इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, है ना। फॉर एग्जाम्पल बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818, डिफेंस ऑफ इंडिया 1993 प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटेड डिटेंशन, तो ये ब्रिटिश टाइम में भी था पर अभी मॉडर्न ब्रिटेन में भी ये लॉ नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23 में बात है। बेगार, फोर्स लेबर, देवदासी सिस्टम, स्लेवरी सबको हटाया जाना चाहिए। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट इसके लिए पार्लियामेंट ने बनाया था। कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन इज बेगार, ठीक है। आर्टिकल सिमिलर फोर्सेस ये बात करता है। फिर बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1917, इक्वल रिम्यूनरेशन 1976 वर मेड, है ना। इट परमिट द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेज, फॉर एग्जांपल मिलिट्री सर्विस, तो स्टेट कह सकते हैं कंपल्सरी सर्विस के लिए, पर यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज, तो पहले 14 साल के बच्चों को फैक्ट्री या हैजार्डस वर्क से मना किया गया। देन बाद में फाइन कितने का, 20,000 रुपये का। देन 2005 में द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट इनेक्टेड टू प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, है ना। गवर्नमेंट बैन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, डोमेस्टिक सर्वेंट वर्क, होटल, ढाबा, इन सब पे भी मना कर दिया गया। चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, रीनेम द प्रिंसिपल एक्ट चाइल्ड लेबर अडल्सेंस एक्ट प्रोहिबिशन रेगुलेशन 1986। तो अब कहीं पे भी 14 साल से कम बच्चों को लगाने के लिए फ़ाइन आपको भरना पड़ेगा, दैट इज़ 20,000। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोपगेशन, प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट, ठीक। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 26 में, तो रिलीजियस अफेयर्स को अपने मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो भी चैरिटी पर्पसेस है ना, राइट टू स्टेब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशंस रख सकते हो आप, ठीक है। तो फिर है कि इन दिस क्लॉज रेफरेंस टू हिंदू शैल बी कंस्टिट्यूट टू इंक्लूड दी हिंदूज में और भी इधर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एज रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशन, इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव सिस्टम्स ऑफ बिलीफ विच हैव दे regarded as conducive for the spiritual well-being, should have a common organization, should be designated by distinctive name. Under our criteria, Supreme Court held that Ramakrishna Mission and Anand Marg are religious denomination with a Hindu fold. It also had Aurobindo Society is not a religious denomination. 3 कंडीशन लगा दी। क्या क्या थी? पहला होना चाहिए कि कलेक्टिव मतलब कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए जिनका सेम सिस्टम ऑफ बिलीव हो। फिर उसके बाद में कॉमन ऑर्गेनाइजेशन और डेजिग्नेटेड बाय डिस्टिंक्टिव नेचर। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन और प्रमोशन आर्टिकल 27, कोई टैक्स नहीं देना। फिर है फ्रीडम टू फॉर अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टेट से फुल्ली और पार्शली फंडेड है तो उनमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जाएं, है ना, और आप लेक्चर्स लें। आर्टिकल 20 डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, होली मेंटेन बाय स्टेट, एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट बट established under any endowment or trust, institution recognized by the state, institution receiving aid from the state, ठीक है। इन A the religious restriction completely prohibited, B religious restrictions is permitted, institution administered by the state but established under endowment, ठीक है। और C और D is permitted on voluntary basis। तो ये 4 टाइप की हैं तो आपको देख लेना है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी आर्टिकल 29, तो ये अपने ना सेम देखो क्या क्या है, कल्चर को कर सकते हैं, लैंग्वेज को डिस्टिंक्ट। फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्टेड राइट ऑफ द ग्रुप, बाय द सेकंड प्रोविजन गारंटी राइट ऑफ सिटीजन एज वेल एज इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी टू विच ही और सी बिलोंग, ठीक है। रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स को एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल नॉट नेसेसरी रिस्ट्रिक्टेड टू द माइनॉरिटीज ओनली, इट इज कॉमनली एज्यूम्ड टू बी दिस बिकॉज यूज ऑफ द वर्ड सेक्शन ऑफ द सिटीजन इन द आर्टिकल दैट, तो ये क्या यूज़ वहाँ पे, सेक्शन ऑफ सिटीजन, माइनॉरिटी कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है, ना ही डिफाइन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड राइट टू एजुकेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, हैंस द पॉलिटिकल स्पीचेस प्रोमिसेस मेड बाय द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज सेक्शन ऑफ द सिटीजन डज नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस अंडर आरपीए। तो अगर कोई नेता बोले कि हम आपकी भाषा को आपके कल्चर को बताएंगे तो वो आरपीए में करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं आर्टिकल 30 के बाद, है ना। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव अ राइट टू स्टैब्लिश अ कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर अ कंपल्सरी एक्विजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी
shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them. This provision was added by 4490 to protect the right. ठीक है, तो उनकी अगर प्रॉपर्टी लेते हैं, है ना, बट फिर उनके इंस्टीट्यूशंस को हटा नहीं सकते, मतलब वो कहीं और पे बनाएंगे, ये होना चाहिए प्रोविजन. इन ग्रांटिंग एड द स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय द माइनॉरिटी. तो सभी की तरह उनको भी ट्रीट करना है. माइनॉरिटी नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर बाय द टर्म. ठीक. फिर इंस्टीट्यूशन दैट सीक्स टू रिकॉग्नाइज और सीक्स नॉट नॉर एड बाय फ्रॉम द स्टेट. ठीक है ना. माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर ऑफ 3 टाइप. रिकॉग्नाइज एज वेल एज एड ऑफ द स्टेट मिलता है. सीक ओनली रिकॉग्नाइज स्टेट नॉट एड, नाइदर रिकॉग्नाइज नॉर एड. फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट विद सिलेबस परसेप्शन वगैरह, जहाँ पे कोई रोल नहीं स्टेट का. थर्ड में वो अपना रूल चला सकते हैं. इन जजमेंट डिलीवर इन सेक्रेटरी ऑफ मालनकारा शीरियन कैथोलिक कॉलेज के सुप्रीम कोर्ट held has summarized the general principle related to establishment and administration of the minority educational institutes in the following way. Right of minority established institute choice comprised of to choose a governing body whom the founder of the institution have faith and confidence, to appoint a teaching staff, also non-teaching staff, and to take action if there is a dereliction of duties. ठीक है. To admit eligible student of their choice, set up the reasonable fee, to use the property asset of the benefit for the institution. Right conferred on minority under Article 30 is only to ensure equality with the majority, not intended to place minority in more advantageous position. There is no reverse discrimination in favor of minorities. The general law of the land related to national interest, social welfare, sanitation will apply equal to minority. Right to establish and administer educational institution not absolute, nor does it include the right to maladministration. ठीक है. फिर सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी कंडीशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट बीइंग मेट, अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल हैव द फ्रीडम टू अपॉइंट टीचर्स. एक्सटेंशन ऑफ द एड बाय द स्टेट डज नॉट ऑल्टर द नेचर और कैरेक्टर ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. द कंडीशन कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग. ठीक है. 31 तो हट गया था राइट टू प्रॉपर्टी के. जनरल हम तो उसको मतलब अलग से रीड करेंगे इसको. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ठीक है. 32 में तो सब कुछ है, लेकिन अगर रेमेडी नहीं है सब बेकार है. सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. आर्टिकल विदाउट विच कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिफाइड. ठीक है. वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी हार्ट ऑफ इट. बेसिक फीचर का पार्ट है, हैंस कैन नॉट बी एवरेज और टेकन अवे. तो इसमें क्या है, 4 प्रोविजन है ना. राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड है. पावर टू इशू डायरेक्शंस और द रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेचुरेरी और कोवारंटो. पार्लियामेंट कैन empower any other court to issue direction, order, writs of all kind, however this done without prejudice to the above power conferred Supreme Court. Any other court here does not include High Court because High Court already have. तो पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी और कोर्ट को रिट की पावर दे सकती है. राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. Thus, Constitution provides that President can suspend the right to move any court for enforcement of the fundamental right during emergency. 359 article में, but that too Article 20 and 21 still are there, but other depends on the principles President's advice, that too in a particular situation. It is thus clear the Supreme Court is constituted defender and guarantor of the fundamental right of citizen. It has been vested with original and wide power for that purpose. Original because of aggrieved citizen can directly go to Supreme Court, not necessarily by way of appeal. Wide because its power is not restricted to issuing of order or direction, but also writ of all kinds. ठीक है. The purpose of the Article 32 is to provide the guaranteed, effective, expeditious and inexpensive summary remedy for the protection of fundamental right. तो कहीं पे ना violation of fundamental right is the sine qua non for the exercise of the Article 32. ठीक है. तो क्या आर्टिकल गारंटेड कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स आर्टिकल एंड नॉट एनी अदर राइट लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, कस्टमरी राइट एंड सो ऑन. तो इन सब के लिए नहीं जा सकते हैं. ठीक है. फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होगा. रिट्स कौन कौन सी हैं, और अदर राइट्स के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं बिकॉज उसकी जुरिस्डिक्शन वाइड है. तो ये चीज़ हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट से इट्स
जो वाइड है जो रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 226 में, इसको उसको अदर जो लीगल राइट्स है उसके लिए भी जो हाई कोर्ट्स हैं वो रिट जारी कर सकती है। रिट्स टाइप एंड स्कोप, कई तरह की रिट्स हैं, 4-5 तरह की मेनली। तो ओनली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स, नॉट द अदर कोर्ट। बिफोर 1950 ओनली हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता बॉम्बे मर्डर है पावर टू इशू रिट्स। 226 empower all the high court to issue writs. Prerogative writs, they are called so as they were issued in the exercise of prerogative of the king, who was still considered the fountain of justice, है ना। तो रिट्स है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ, वेयर हाई कोर्ट के पास क्या है, फॉर इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो एनी अदर पर्पस। एक्सप्रेशन फॉर एनी अदर पर्पस रिफर टू इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल लॉ। दस रिट्स जुरिस्डिक्शन ऑफ, ये सब तो है, सुप्रीम कोर्ट का टेरिटरी बड़ी है, हाई कोर्ट की कम है। रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इन इट्स इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, हैंस द सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज to exercise its jurisdiction. On the other hand, remedy under 226 is discretionary and High Court may refuse to exercise its jurisdiction. 32 does not merely confer power on Supreme Court as 226 does on a High Court to issue writs for the enforcement or other rights the part of general jurisdiction. Supreme Court is thus constituted as defender and guarantor of the fundamental rights, क्योंकि ये स्टेट्स के लिए ऐसा नेसेसरी नहीं है। Habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. These writs we will cover in the next lecture. Thanks for watching.